Hello, Hariji. Good evening. Good evening. Good evening, Rahulji. Good evening, Girdarji. Yeah. So I hope you all are having a good weekend. Sorry, weekend to bhi aayega. But I hope you have a good weekend ahead. And I hope you had a good week of Ganesh festival. Many of us had Ganesh Visarjan today. So, and might be many of us would be still in Ganesh Visarjan today. So it's okay. We will carry on the stream today. So basically, जो आज का stream है, it is on analyzing Nifty 50 and Bank Nifty, right? And mostly we will talk about different aspects of indices. Uh, that is in terms of what are they doing, what is the current scenario for the sectors, and everything else. Okay. So if you have any questions in between, you can just use the chat section to just ping me with your questions. And meanwhile, we can just start with a general overview of Nifty 50 and Bank Nifty. Okay. So basically, when we see market scenario for this particular week, it was basically on the downside, right? As we had a bearish GPZ for Nifty as well as Bank Nifty. So if we just quickly first move on to daily time frame to check what was the indices doing on a broader time frame. So आपको इधर दिख रहा होगा कि हमने 11th of September को एक stream किया था, that is somewhere here, okay, oh sorry, somewhere here. At this particular point, we took our last stream, and there we had a plan depending on how the market can progress in the coming week or in the coming couple of weeks, as it was nearing all-time high. ठीक है, तो उसके बाद you might have seen this particular thing happening, exactly what we just analyzed. Because see, this is not like any rocket science. This was plainly written on the charts, and it was like बहुत ही ज़्यादा you can say predictable था, ठीक है? And that's how you can see a dip. So if we see to dip towards PEMA, so currently we are at the lowest point of PEMA. ठीक है? Last time जब ऐसा हुआ था तब आप देख सकते हैं कि where we were standing. Just have a look. Last time when this thing happened, we made actually a short-term bottom. That is at around 19,240. Okay, so let me mark this with a particular line for you. Check. Last time when this thing happened, that was around 19,000 to 230 to 40 levels. And now again we stand at a particular support. Okay, that is somewhere around 19,570. Now this tends to be also monthly H4 level. Okay, but if we might just have a look on the broader notation, मतलब अगर हम broader picture को एक बार देखें कि what was happening around in this particular thing, then you can just have a look or observe this thing happening. See, watch my markers now here, because that's very important to analyze how the particular scenario can belong across with the upcoming couple of weeks. Sorry, couple of days. Okay, so if you just see, we just made a top somewhere around which levels? That is QH4 and yearly H4. Am I right? Just let me undo it. That is QH4 and yearly H4. What does that mean? That means that we were trading at around, Nifty was very good, or you can say very perfectly placed for more upside if we had another set of initiative players joining in the party. Correct? But what happens?
we just see a particular rejection from the yearly H4 and quarterly H4 levels, and there you see a drop coming in. Now, if you might see, the drop is acting so fast, like this drop was so fast. So this date is around 28th of September. So what I will do is, मैं इसको खाली जाके अभी मार्क कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम सिर्फ मार्क करके रखेंगे, because when we go down to a lower time frame, you might see this particular reference coming into picture. Okay, so keep this thing in mind for instance, and then we will just move forward to Bank Nifty to seeing the same kind of notations. So आपको एक basic clear हो गया होगा I guess, ठीक है, कि you might see the same thing happening. We are making a base around PEMA squeeze के around हमने एक base बनाया था. Now the same thing is happening again. We are somewhere near to a swap level. If you can just see this thing, okay, that is somewhere around 19,540 levels, okay, and that also stands to be monthly H4. Now why this stays important is because though we have ended monthly expiry for September today, but according to the normal time frame of a month, we still have 1 day to go for this September series to get completed. That is on Friday 29th of September, that is tomorrow. ठीक है, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट इट विल जस्ट गो ऑन कंप्लीटिंग द मंथली पिवट का स्ट्रक्चर, मतलब जो भी ऑनगोइंग स्ट्रक्चर है उसको निफ्टी कंप्लीट करने के बारे में पहले सोच सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी जस्ट गो ऑन टू एनालाइज कि कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम फर्स्ट. सो बेसिक एनालाइजेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये देखिए, दिस कैंडल वेंट डाउन साइड ऑन द वेरी फर्स्ट सेलिंग कैंडल और सेलिंग प्रेशर, ठीक है, इसको हम राइट से मार्क करेंगे. देन यू कैन सी कंटिन्यूस फॉल, 1 2 3 दिन. देन व्हाट हैपेंस? if you see, we make a range sort of thing. Okay, this is a range sort of thing. I will take it as a dark color here. I will. Okay, एक रेंज बनाता है मार्केट 3 दिन कंटिन्यूस फॉल के बाद. इट जस्ट goes on trading in that particular range, and now current candle is a ORS candle, means outside reversal. इसने पूरे के पूरे 3 दिन के हाई को कट करके नीचे की तरफ क्लोज दिया. This is not like any other candle which you can think of as like it will just get covered in just a single up move. ठीक है, ये वैसा कैंडल नहीं है. If you just observe very very closely, ये 3 दिन के हाई को काट के, ये देखिए, I'll just make this thing a little bit smaller. So इसको हम कोई और कलर से डिनोट कर लेते हैं, let's say orange. Okay, so if you just see 1 2 3 4, so आज का जो डेली कैंडल था आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया, 3 डे हाई को काटा है, एंड इट्स अ फेल्ड ऑक्शन. अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में बोलेंगे तो दिस इज अ फेल्ड ऑक्शन, बट टेक्निकली जब हम कैंडल के फॉर्मेट में देखेंगे तो कैंडल के फॉर्मेट में इट्स अ ओआरएस पैटर्न, आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज ओआरएस. Just a minute. ORS, that is outside reversal candle. ठीक है, सो बेसिकली जब ऐसा कोई सिनेरियो आपको दिख रहा है, अगर आपको टेस्टिफाई करना है तो आपको ऑलरेडी पार्ट 2 में कैंडल से स्कैन्स अवेलेबल हैं. यू कैन जस्ट गो ऑन एंड चेक दैट थिंग आउट, ठीक है, जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पस. So basically, I guess you got a good idea for Nifty. Now let's go on and check for Bank Nifty also. ठीक है, so come here. Let's go to Bank Nifty. Now have a look. The same thing is happening with Bank Nifty too. Okay, on a similar notation. So एक बार के लिए मैं PEMA ऑफ कर रहा हूँ just to show you what is the broader aspect of the market. So if you see, Bank Nifty तो was very very easy. अगर आप देखेंगे तो Bank Nifty का एक लेवल आपको अभी भी याद होगा, मैंने एक शॉर्ट क्लिप डाला है टेलीग्राम चैनल पे.
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46,300 what we talked about, and you can see how was the reaction from there, right? A simple fall came. अब it is very important to know कि इसका जो fall है that was very much aggressive and faster compared to Nifty. Why? Because ये already एक higher time frame के responsive seller से punch in होके आया. That means कि इसका reaction ही एक selling zone से था. Whereas Nifty was on the other hand from an initiative buyer zone. So आपको intensity of move समझना पड़ेगा इधर. What is the intensity of move here? Right? अब जो इसका इंटेंसिटी था दैट वाज मेजरली ड्यू टू एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक directly got down, citing numerous reports about funding problems, then NIM margin problems, फिर liquidation problems थे because of its merger. Everything went down to put a additional pressure on बैंक निफ्टी. ठीक है, सो आपने उस दिन एक अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी में आता देखा होगा. And similarly, the following day also was traumatic for both the indices, क्योंकि इधर आपके monthly H4 participant trap हुए थे. So I guess this is very very easy to understand when you go on and analyze it on a broader time frame. Why? Because जब आप इसको एक broader perspective से देखेंगे तो आपको lower time frame पे आके problem नहीं होगा. And how we will do that, we can also see that in a few minutes. So अभी आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इंटेंसिटी वाइज बैंक निफ्टी was dominating, but strength wise, strength of fall or strength of up move is greater in Nifty. Why? Because it has uh, taken up a huge chunk of stop losses. Almost 3-day high को काट के उसने एक closing दी है, fresh close. And now we can expect a fresh low, weekly low being created tomorrow if the scenario is weak for tomorrow too. उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अभी in a couple of minutes. ठीक है, so if you see बैंक निफ्टी ने बहुत ही सटनली अपना मंथली पिवट का सेटअप कंप्लीट किया and same can be expected from निफ्टी too. बट इसको हम एक नोटेशन में अगर डिनोट करना चाहे तो हम ये भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट अप मूव दैट इज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के फर्स्ट बेस पे आके सपोर्ट ले रहा है. ये देखिए व्हाट इज द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हियर, और फर्स्ट बेस का मतलब ये देखिए आपको ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिक प्राइस एक्शन. और अगर आप इसको एक माइनर पकड़ें तो दिस इज अ फर्स्ट बेस. सो ये कुछ फर्स्ट बेस पे आके इस तरीके से खड़ा हुआ. बट when we talk about this particular thing in बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक पाथ रिट्रेस कर लिया. इसका सिंपल सा मतलब बैंक निफ्टी के पास एक मोमेंटम है अपसाइड जाने का, बिकॉज इट इज द बायर्स आर एट अ वेरी डीप लेवल. अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज में कंपेयर करूं, सो लेट्स सी. ये देखिए परसेंटेज वाइज में बैंक निफ्टी का अगर फॉल आना है तो समवेयर अराउंड 1.67%, दैट इज समवेयर अराउंड 750 पॉइंट्स का फॉल, which does not looks like happening because इतना लो मतलब इतना हाई इंटेंसिटी ऑफ फॉल कल के तारीख में एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते. बट if the scenarios are on the opposite side, if there is some news or something like that, then it can go on because Nifty also has space to complete this similar setup which you can see in Bank Nifty. मंथली H3 या मंथली पिवट की तरफ रिट्रेस कर सकता है निफ्टी. आप देख सकते हैं ये देखिए it still has that particular room of 100 points, 100 to 150 points. Okay, so means कल फ्राइडे को अगर मैं सिंपल सा एक नोटेशन में बोलूं, then you will see who is the dominating factor or who is the dominating index for tomorrow. अगर बैंक निफ्टी इज डोमिनेटिंग और बैंकिंग सेक्टर इज डोमिनेटिंग, देन डेफिनेटली निफ्टी भी एक रिवर्सल पॉइंट से ऊपर चला जाएगा. दैट इज 19,500 पे वापस एक पी शॉर्टर्स आएंगे, दैट इज सेलर्स आएंगे, पी सेलर्स. दैट मीन्स दे माइट जस्ट ट्राई टू पुश और कीप निफ्टी अबव 19,500
570 लेवल, दैट इज मंथली H4। उससे क्या होगा कि लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव फॉर इंट्राडे। ओके, so that can be the scenario in Nifty if Bank Nifty supports। but अगर कल Nifty dominate करता है, if Nifty is dominating tomorrow, then this particular level will act as a solid resistance for tomorrow, that is the same monthly H4। what is that? 19,570। so इसके ऊपर अगर कल मार्केट जाएगा तभी we can expect some bulls to hit onto the market for tomorrow। otherwise we are open for more slide down of 100 to 150 points from today's closing। simple as that। तो आई होप आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट तो समझ आ गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट सम कॉमन यू कैन से नोटेशंस हियर। अगर हम पेमा की बात करें बैंक निफ्टी में, तो इसने ऑलरेडी स्क्वीज के बाद आपको एक ब्रेकडाउन दे दिया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन सी, लास्ट टाइम अगर आप देखें तो बहुत ही सिमिलर प्राइस एक्शन आपको देखने मिल रहा था। लास्ट टाइम ऐसा जब सिनेरियो हुआ था, दैट वाज समवेयर हियर, तो बैंक निफ्टी ने फर्दर फॉल कंटिन्यू किया था और नीचे कहीं आके एक बेस ढूंढा था, दैट इज समवेयर नियर हियर। ये देखिए, ये कैंडल लास्ट time you can see this was a mother candle and then a breakout happened here, और उसके बाद से ही ये बेस बन चुका है, राइट। तो इसका जो बेस है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे की पॉसिबिलिटी देखना चाहें, देन फर्स्ट बेस लाइज समवेयर अराउंड 43,850। ठीक है, मतलब करीबन करीबन 350-400 पॉइंट नीचे। सो ये केस तब होगा जब कल निफ्टी डोमिनेट कर रहा। ओके, अगर कल बैंक निफ्टी डोमिनेट कर रहा है तो डेफिनेटली बायर्स विल ट्राई टू कीप द इंडेक्स अबव 44,400। सिंपल एंड स्ट्रेट एनालिसिस, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट करने का आपको जरूरत नहीं है, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट, देन डेफिनेटली वी आर ऑन द सेलिंग साइड बिकॉज आपको वो इंटेंसिटी दिख रहा है। हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट पेमा, ये देखिए लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था स्क्वीज के बाद उसने नीचे ब्रेकडाउन दिया था, तो ये सिनेरियो में क्या हुआ था हम देखते हैं। ये देखिए, ये सिनेरियो में इसने एक पुल बैक देने का कोशिश किया था टूवर्ड्स पेमा, दैट इज अ ब्रेकडाउन एंड देन अ पुल बैक, देन अगेन अ बेस फॉर्मेशन विद अ ORS पैटर्न, जिस तरह में बुलिश पैटर्न, और फिर अगेन इट वेंट ऑन टू द अपसाइड, राइट। सिमिलर केस वापस से आपको इधर एक similar formation देखने मिल रहा है। So what we can expect? We can expect the same thing happening now also, which is on the lower side। So chances या probability of Nifty dominating the market in comparison to Bank Nifty and Nifty, उसकी जो probability है Nifty की is much more higher, but things can be seen or observed once the market opens and prints the opening price। So अभी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट पता चल गया कि निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। नाउ हाउ टू प्लान आउट फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। बहुत सारे लोगों को ये एक कंफ्यूजन हो सकता है। सो बिफोर मूविंग टू दैट, जस्ट लेट मी चेक द चार्ट सेक्शन वंस। गुड इवनिंग मीतू जी, सुदीप बी, हेलो सुदीप जी, गुड इवनिंग। Anirudh ji, good evening. Girdhar, sir, are you a part-time or full-time trader? By now you should know I am both. Okay. So basically I am a full-time trader because I mostly work on, my core is swing and intraday. Swing and positional. I work only on intraday when I get some good setups or some defined conditions. ठीक है, वरना by core I am a swing or positional trader, or swing maybe I can carry mostly stock options। So before I was doing stock options, now recently I am trying out in stock futures। So this was a short brief। What will be the content of webinar on 1st and 2nd October? You can just go and check the webinar details on the Telegram channel।
The whole PDF is posted there, or just check the description of this particular live stream. Sorry. So, okay, so I guess this was the last message. So yes, now coming back to analyzing Nifty and Bank Nifty on a lower time frame. So let's get down to Nifty first. Okay, now the interesting part comes out to be this particular date, that is Wednesday, 20 of September. Okay, अब देखिएगा, watch it carefully now. What I will do is I will just switch on the pivots for pivot points for tomorrow, that is developing pivots. Okay, and what we can do is we can just switch on daily and weekly CPRs, daily and weekly CPR ka trade, and we can just go down to 15 minutes as a lower time frame, or what I do or what I prefer is 30 minutes. So now you can get a complete catch of what is going around in both the indices. Okay. For instance, I will just close this thing first. इसको अभी हम फिलहाल के लिए बंद करते हैं. And let's first understand what is happening out here. So purple color is basically weekly CPRs, okay, and your blue color, which you see here, is your normal daily CPR trade. इसका आपने एक स्क्रीनशॉट भी देखा होगा अंडर दिस थिंग, टेलीग्राम चैनल पे हमने चैट रूम में पोस्ट किया था पिवट बॉस के. उधर यू माइट हैव सीन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स विद द सेम स्टाइल ऑफ, मतलब जो स्टाइल आपको अभी इधर दिख रहा है सेम स्टाइल आपको उन चार्ट्स में भी दिखा होगा. सो दैट वाज बेसिकली दिस थिंग व्हिच यू कैन सी basically in terms of CPR trails or हमारा MTF indicator. Now we will just go on and add weekly also. I'll close one product there. You can just wait. Perfect. So the thing to notice here is why I mark 20 September is, अब देखिएगा ध्यान से, previous week started from here and this week started from here. So first basic सा observation क्या होना चाहिए? Okay, basic सा observation आपका ये होगा that first you will see the relation of CPR, 2-day CPR. तो ये 2-day CPR का relation क्या है? Descending CPRs, weekly descending CPR, right? Weekly descending CPR. Now, above that, what is the relation of current week CPR? Yeah, what is the type of current week CPR? Obviously, when you see H3 within the CPR, that means bearish GPZ. So I will just put it down for you and for the audience too. So basically, this is a bearish GPZ. What does that denote? That denotes that firstly रिलेशंस, अगर आप 2-day रिलेशन देखें तो 2-day रिलेशन हमें पहले से ये बताता है कि इसका स्ट्रेंथ और मूव, स्ट्रेंथ एंड ट्रेंड दोनों डाउन है, करेक्ट. एंड when we go on further analyzing the type of CPR for this particular week, it is also giving a good confluence to the ongoing trend with a formation of bearish GPZ. तो इसका सिंपल सा मतलब है जब तक ये GPZ क्रॉस नहीं कर देता तब तक ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूव में ही रहेगा, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ हैपनिंग. आर वी क्लियर हियर? सो जब हम इसको, अब देखिए ये एक बार क्लियर कर देते सब. ओके, नाउ अभी अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो वी कैन मूव एंड चेक व्हाट हैपेंड ऑन बेसिकली 20 of September, जो हमने ये डेट मार्क किया था ना 20 का. आपको अगर याद हो तो लाइव स्ट्रीम में सबसे पहले मैंने ग्रीन वर्टिकल लाइन से मार्क किया था, बिकॉज दिस थिंग was much more of a
you can say catch, a easy catch, which you could have taken if you were trading on an intraday or weekly basis. ठीक है, आपको बहुत इजी सा एक प्राइस एक्शन इधर देखने मिल जाएगा. व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक कंसोलिडेशन चल रहा है. ओके, द कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन एंड हियर the buyers try to push the range up or try to take a breakout from this particular said range, but they failed during the close. And what happens? You can see, ठीक है, एक wick ऊपर बन के close हो जाता है. So that denotes typically a failed auction, or buyers were not that strong to take the current price towards the upper side. इसका सिंपल सा आपको प्राइस एक्शन के फॉर्म में आपको दिखा होगा एक ब्रेकडाउन दैट हैपेंड अराउंड 18 सितंबर 2:45. मतलब ये आपका एक 3 PM मूव था. 18 सितंबर का 3 PM मूव. यू कैन जस्ट सी दिस थिंग हियर. Sellers entered here, positional sellers, and then you can see on the very next day we took a big gap down due to Reliance plus HDFC both gap down. अगर आप देखेंगे चार्ट ऑफ रिलायंस ऑन 20 सितंबर, देखिए ये रहा 20 सितंबर. इसका लो फर्स्ट कैंडल में कितना कितना नीचे गया था. जस्ट हैव अ चेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? एंड सिमिलरली फॉर HDFC बैंक, check it out. Sorry, yeah, check this thing out. ये रहा आपका 20 सितंबर 9:15, a huge gap down, right? So आपको एक चीज तो काफी इधर क्लियर हो गई होगी कि मूव किसकी वजह से आया, क्यों आया एंड किस तरीके से आया. करेक्ट. नाउ अगर आपको ये चीज अब समझ आ गई है तो अब हम निफ्टी के बारे में कंटिन्यू कर सकते हैं फिर से. सॉरी, निफ्टी 50, ठीक है. निफ्टी के बारे में वापस कंटिन्यू कर सकते हैं एंड वी कैन गो ऑन एंड चेक व्हाट वाज हैपनिंग हियर. सो बहुत ही क्लियर एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा. CPR ट्रेल्स आर गेटिंग प्रोटेक्टेड. सिर्फ आज का ऐसा दिन था जहां पे इसने क्रॉस करने का कोशिश किया था, दैट इज अराउंड 19,766, एंड दिस वाज आल्सो दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज इधर एक वर्जिन यू कैन से सेल जोन बना हुआ था, which I had posted in the chat room also, if you remember the diagram. ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद है तो you can just take a look upon that. It's in the PivotBoss chat room. So आप उसको देख सकते हैं कि how it went across. We were just expecting to hit 740 levels on the same day, but उसका closing week गया on this particular that is 26th of September. We were expecting Nifty to just hit 730 740 levels. Means this particular high को cross करने का कोशिश हो सकता था. But what happens is we open gap down and then again suddenly we see a rush of buyers. Who were these buyers? Immediate buyers, monthly H4 buyers. किसके साथ ज्वाइन किए थे? वीकली L3 buyers. इसका चार्ट आपको मिल जाएगा चार्ट रूम में. Okay, so you can see how this thing particularly progressed, and then first instance ऐसा हुआ है ये पूरे 2 वीक में आफ्टर दिस पर्टिकुलर फॉल. ये देखिए, there is no touch. ये तो वर्जिन CPR है, ठीक है. दिस इज अ वर्जिन CPR. Sorry, not this one. We need this. This is a virgin CPR. Again, price tried to cross the CPR, failed. Tried to cross the CPR, failed. इधर तो नैरो है, 2 दिन पूरा रेंज में रहा है, ठीक है. अपसाइड डाउनसाइड अगेन क्लोज हियर. फर्स्ट इंस्टेंट ऐसा था जहाँ पे प्राइस ने आज ऊपर खुलने की कोशिश की थी, बट अगेन व्हाट हैपेंड, यू कैन सी अगेन सेलर्स केम इन, जस्ट अ शेक ऑफ. ये देखिए, ये बेसिकली ये जोन था जहाँ पे इसको हिट करना था, दिस पर्टिकुलर जोन. ये अगर आपको दिख रहा होगा तो लिक्विडिटी वॉज लेफ्ट आउट. बेसिकली ये विक पे आना चाहिए,
ये रुकिए, सही कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, liquidity area on here. Now you might say, uh, why are we combining the zones with CPR concept? Because अगर ये इधर नहीं आता तो डेफिनेटली ये इधर तक टच करके एक रिवर्सल देता टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जोन। इधर ये पॉइंट से रिएक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम वीकली पिवट। इधर से ये जो जोन है दैट वुड हैव टर्न्ड फ्रॉम अ रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, एंड फिर प्राइसेस को तोड़ के समथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड। और ये जो मूव था ये बेसिकली ये पार्ट ऑफ द मूव, दिस पार्ट ऑफ द मूव वुड हैव बीन टुमारो, मतलब ये पार्ट होता था फ्राइडे को। सो बेसिकली क्या होता, कल शॉर्ट कवरिंग हो जाती, राइट। सो दिस इज हाउ द मार्केट वुड हैव मूव्ड अगर ऐसी सिनेरियो बनती तो। बट आपको पता है कि ये चीज बहुत ही एविडेंट है, अगर इधर से सेलर्स आ रहे हैं तो यू माइट हैव बीन जस्ट रेडी टू टेक दैट, और आपको पता है वो अग्रेसिव सेलर्स कौन है। अब अगर आपको ब्रॉडर टाइम फ्रेम से रिलेट हो रहा हो तो यू कैन जस्ट गो ऑन एंड रिलेट व्हाई वर दीज सेलर्स अग्रेसिव, जो मैंने स्टार्ट में बताया, राइट। सो आई होप निफ्टी का सिनेरियो आपको बहुत ही क्लियर होगा, एंड इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। इसको सब हटा देते हैं एंड बैंक निफ्टी पे चलते हैं। नाउ सी, अब बैंक निफ्टी का तो आई गेस यू कैन ओनली से, क्योंकि आपको निफ्टी का अगर समझ आया तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर नोटेशंस पे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इज वेरी मच सिंपल, निफ्टी से ज़्यादा सिंपल बैंक निफ्टी था। अगर आप प्रीवियस लाइव देखेंगे, दैट इज 11 सितंबर का लाइव देखें, और फिर वो देखने के बाद अगर आप इधर आए ना तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर समझ आएगा व्हाई आई एम सेइंग बैंक निफ्टी इज मच मोर इजियर देन निफ्टी। ये देखिए सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इधर भी हो रहा है, एक रेंज बना रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। बट यू माइट बी मच मोर कॉन्फिडेंट हियर, बिकॉज ये कौन सा लेवल है सबको पता है, 46,300, द फेमस लेवल अभी अभी के लिए तो, बिकॉज वी नो व्हाई एंड व्हाट दिस लेवल वुड हैव स्टूड फॉर। तो अग्रेसिव सेलर्स इधर से ज्वाइन करते हैं और रिस्पॉन्सिव अग्रेसिव सेलर्स ट्राई टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग। ब्रेक डाउन होता है, सिमिलर 3 PM मूव था ये ऑन 18th of September, and then you can see beautiful ERS pattern, extreme reversal, extreme reversal setup, and उसके बाद ORB का breakdown। have a look, right? Again what happens, similar निफ्टी की तरह ये भी चलता है, ये देखिए, okay, the selling pressure is down, but now comes the important point why I said कि आपको याद है मैंने एक चीज बोली कि कल का जो मूवमेंट है वो इंडाइसेस पे इसलिए डिपेंड करेगा, मतलब कौन सा इंडाइस डोमिनेट कर रहा है वो इसलिए डिपेंड या इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी के पास स्कोप नहीं है। इफ यू जस्ट गो ऑन एंड चेक निफ्टी अगेन, निफ्टी के पास कोई स्कोप नहीं है अर्ली बायर्स को फाइंड आउट करने का। इफ यू जस्ट गो एंड लुक, इधर एक बायर्स प्रेजेंट तो आए आते हुए दिख रहे हैं, ओके, बट वी नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर लेवल आउट फर्स्ट, दैट इज 19,570। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए बैंक निफ्टी भी सिमिलर, आपको एक नोटेशन बनाता हूं देखिए, दैट इज जैसे निफ्टी पे एक रिएक्शन आया है, ठीक है, आप देखिए इमीडिएट रिएक्शन आया, नो फॉलो अप सेलिंग, ये कैंडल का ब्रेकडाउन था वीकली L3 पे, उसके बाद नो फॉलो अप सेलिंग है। तो निफ्टी कुछ इस तरीके से बिहेव कर जाएगा कल, इधर आके फर्स्ट स्टॉप ले सकता है और उसके बाद अगर ज्यादा अग्रेसिव जाता है तो नीचे की तरफ आ सकता है, बट कहीं इधर आके बेस बना सकता है निफ्टी, कुछ इस तरीके से होता है, हो सकता है अगर बैंक निफ्टी कल स्लिप ऑफ ले लेता है वीकली L3 से। ये एक आप सिनेरियो अभी के लिए ध्यान में रखिए। अब वापस आते हैं हम एक बार बैंक निफ्टी पे, ओके। अब देखिए, अब जो मैं बोल रहा था आपको वो चीज आपको इधर होते दिख जाएगी।
अगर बैंक निफ्टी स्लिप ऑफ होता भी है तो इट हैज अ रूम फॉर वीकली रिस्पॉन्सिव बायर्स टू हिट अप, और वो लोग किधर तक ड्राइव कर सकते हैं, वो लोग ड्राइव कर सकते हैं टूवर्ड्स दिस मंथली पिवट, राइट। सो इस सिनेरियो में बैंक निफ्टी कुड गिव अ शॉर्ट कवरिंग ऑन इंट्राडे बेसिस। ये इंट्राडे बेसिस की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन अ वीकली बेसिस, बिकॉज ये इतना सा रेंज है तो कल इंट्राडे ही पॉसिबल है। बट while bank nifty short covers, ठीक है, in intraday, it will give strength to nifty to cross that particular or stay above monthly H4 level, और हो सकता है कि लास्ट में निफ्टी भी शॉर्ट कवर करना शुरू कर दे इफ इट स्टेज अबव मंथली H4। सो ऐसा सिनेरियो हो सकता है इफ बैंक निफ्टी इज डोमिनेटिंग। अगर निफ्टी डोमिनेट कर रहा है तो इसका सटल सा आपको एक आइडियल सिनेरियो कुछ इस तरीके से देखेगा होते हो। सिमिलर एक सेल ऑफ आ सकता है, समथिंग लाइक दिस, ब्रेकडाउन, राइट। सो ये केस में अब आपको दिख रहा होगा 14,800, जो हमको पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम में भी ये लेवल आते हुए दिखा था, राइट। सो टेक्निकली बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन बी इन सिंक अगर कल फॉल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो। अब जब हमने सब कुछ समझ लिया, हमने ब्रॉडर समझ लिया, हमने लोअर समझ लिया, अब आती है बात प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि अगर निफ्टी स्ट्रांग रहता तो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहता है तो क्या हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है वो हमें पिवट पॉइंट्स खुद बता सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, पार्ट टू में जाना है अपने को जस्ट डेली में, यस, बिकॉज वी जस्ट नीड टू सी कि कल के पिवट पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं वेल इन एडवांस। सॉरी, इसको हम फिलहाल के लिए ठीक है कैसे ही रहने देंगे। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आई होप द चार्ट इज विजिबल नो, नंबर्स और ये सब सारे विजिबल होंगे आपको। ओके, सो ये देखिए, नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब आप देख सकते हैं क्यों ये क्लियर है। अब देखिए कल का जो सिनेरियो है निफ्टी के लिए, दैट इज बेरिश जीपीजेड, डेली बेरिश जीपीजेड। सो काफी क्लियर है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, दैट इज दिस लेवल, बैंक निफ्टी विल टेंड टू रिमेन बेरिश, ठीक है। और आपको एक कॉन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, a good confluence of daily and weekly responsive buyers. So ये अपनी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हुई कि अगर बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से भी खुलता है, कहीं इधर या गैप डाउन भी खुल जाता है, तो इधर से कुछ ऐसा मोमेंटम आना, उसके बाद इधर फर्स्ट स्टॉप लेना, दैट इज टूवर्ड्स L4। ये फर्स्ट सिनेरियो है अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं। गैप अप खुल जाते हैं तो गैप अप में सबसे पहले इसका इनिशियल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है। आई डोंट नो ये क्यों, हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, करेक्ट। एंड गैप अप के सिनेरियो में, अगर हमें गैप अप का सिनेरियो देखना है तो गैप अप के सिनेरियो में तो एक ही चीज पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर खुल जाए। इसके ऊपर खुल गए तो डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी से ज्यादा फास्ट शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आते दिखेगी। वो क्यों, अब आप देखिए। तो आपको आई गेस ये तीन सिनेरियो समझ आ गए। अब प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे, कैसे उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। बट फर्स्टली उसके लिए एक लास्ट निफ्टी देख लेते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो निफ्टी के लिए भी सिंपल अगर आप देखेंगे तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ। देखिए निफ्टी पे भी सिमिलरली बेरिश जीपीजेड है, ओके, एंड दैट मीन्स जब तक ये जीपीजेड क्रॉस नहीं होता तब तक इट विल रिमेन बेरिश। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज, अब देखिए मंथली H4 किधर है, सिमिलरली इधर है। सो अगर निफ्टी का गैप अप भी खुलता है लेट्स से मंथली H4 के ऊपर,
इन सिंक विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के सिनेरियो में हमने क्या देखा था, वो जीपीजेड के पास रोटेट करके फिर ऊपर की तरफ जीपीजेड को तोड़ सकता है टू ब्रिंग इन शॉर्ट कवरिंग फॉर इंट्राडे। सिमिलर सिनेरियो में अगर बैंक निफ्टी डोमिनेट करता है तो निफ्टी कैसा मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, इधर से आएगी शॉर्ट कवरिंग until this particular level we can expect 700 720, कुछ इस तरीके से हो सकता है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कैसा हो रहा है। दैट इज फर्स्ट सिनेरियो इफ बैंक निफ्टी स्टेज स्ट्रॉन्ग। अब सेकेंड सिनेरियो इसका ये होगा, ये लाइन तो मार्क की रहेगी। सेकेंड सिनेरियो इसका ये होगा इफ वी ओपन साइडवेज और समवेयर नियर टू दिस बिटवीन मंथली H4 टू प्रीवियस डे लो। ठीक है, इस रेंज के बीच में कहीं खुल रहे हैं, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन towards L3 and then towards this, something like this. So इस सिनेरियो में बैंक निफ्टी भी सिमिलर नोटेशन फॉलो करेगा इन केस ऑफ अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुल रहा है तो बैंक निफ्टी वो टर्न फ्रॉम बेरिश जीपी से। ठीक है, तो आई गेस दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर नाउ कि मूव्स कैसे हो सकते हैं विच एवर इंडेक्स इज ट्राइंग टू डोमिनेट, एंड हेंस यू कैन फाइंड द suitable choice or set of moves getting printed in the market tomorrow. Everything will depend upon open किस तरीके से कैसा हो रहा है और फर्स्ट हाफ एन आवर के सेशन में कौन डोमिनेट कर पा रहा है। करेक्ट। सो अब जब आप ये चीज समझ चुके तो इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ओके, नॉट दिस बट दिस थिंग। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी वाइज देखने जाएं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रांग होने का प्रोबेबिलिटी कल ज्यादा लगता है, और अगर वो चीज ज्यादा है तो निफ्टी भी या तो साइडवेज रहेगा ये पर्टिकुलर जोन में, दैट इज समवेयर हियर। ठीक है, या तो फिर ये प्रीवियस डे लो को प्रोटेक्ट करके, या फिर अगर आपने बूट कैंप सीरीज देखी हो तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंस किस चीज का है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा फॉर टुमारो। अगर आपने अभी तक बूट कैंप सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये चल के लास्ट में शॉर्ट कवरिंग ले सकता है, ब्रेकिंग द जीपीजेड। बट बी वेरी श्योर कि अगर ये इस मंथली H4 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इन द सेकेंड हाफ तो ही ये सिनेरियो पॉसिबल। हाँ, अगर हम बाय एनी चांस बैंक निफ्टी गेट सम गुड मूव्स तो फर्स्ट हाफ के एंड में भी आपको जीपीजेड ब्रीच होते हुए दिख सकता है। सो कल का दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इन बोथ द इंडाइसेस अगर इंडेक्स स्टेबलाइज रहता है तो, बिकॉज ब्रॉडर टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा निफ्टी इज ऑन अ पेमा स्क्वीज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब एक बेस बना था, शॉर्ट टर्म बेस, तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस हुआ था, उसने ब्रेकडाउन देखे एक लोअर साइड पे बेस बनाया था। तो अगर बैंक निफ्टी अपोजिट रिएक्ट करता है तो निफ्टी के लिए इट माइट बी गुड बिकॉज निफ्टी वुड बी स्ट्रॉन्गर इन दैट केस ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, एंड इंट्राडे में बैंक निफ्टी डोमिनेट करेगा, निफ्टी फॉलो करेगा, सिंपल एज दैट। अगर निफ्टी वीक रहता है बाय एनी चांस एंड बैंक निफ्टी को भी वो प्रेशर रिपल इफेक्ट झेलना पड़ रहा है, देन both can fall in the second half. So I'm sure you can understand what can be the scenarios. Okay, it is very easy, nothing to like sort of worry about, or nothing sort of मतलब इतना कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर टुमारो बिकॉज कल लास्ट डे है सितंबर सीरीज का, सो ये मंथली लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या तो रिजेक्ट हो जाएगा मंथली H4 से या तो रिस्पेक्ट हो जाएगा। सो कल का जो आपका निफ्टी का लेवल है दैट इज मंथली H4, दैट इज 19,570, सिंपल एंड स्ट्रेट, खत्म।
इसके ऊपर सस्टेन करता है यू कैन बी अ बुल, इसके नीचे सस्टेन करता है यू कैन बी अ बेयर। और जैसा कि आपको पता है स्ट्रेंथ और ट्रेंड दोनों नीचे हैं, इंटेंसिटी दोनों की ज़्यादा नीचे है, सो आपको ये चीज़ दिख जाएगी होते हैं टूवर्ड्स द डाउन साइड। डाउन साइड का जो स्ट्रेंथ आएगा वो काफ़ी तेज़ी से आता दिख सकता है। करेक्ट। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है। सो आई गेस आपको मार्केट का एक अच्छा खासा मतलब रिव्यू मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग्स ऑफ। और अच्छा हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट check on to other factors such as DXY। अभी हम चार्ट रूम में आज डिस्कस कर रहे थे अबाउट DXY, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। सो बेसिकली जब भी आपको ये एक अप मूव में दिखता है, अभी करंटली आपको ये नीचे आता दिख रहा है, बट फॉर पास्ट फ्यू डेज इट वाज जस्ट सोरिंग अबव। वीकली डेली बंद कर देते हैं एंड पार्ट ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, आपको ये सोर होते हुए दिख रहा होगा एंड यू कैन सी a beautiful price action on the charts as well as pivot। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है somewhere here, एंड वो ब्रेक किससे हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ QH4 एंड MH4 प्लेयर्स। सो आप इसको एक अच्छा सा कंपाइलेशन ऑफ यू कैन से प्राइस एक्शन प्लस पिवट का एक गुड कंपाइलेशन देख सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू सी हाउ द डॉलर इंडेक्स वेंट अप। अब इस चीज में क्या होता है, सिंपल सा एक रिलेशन है। जब भी DXY आपको स्ट्रेंथ में दिखेगा, इफ DXY is increasing, DXY increases, then rupee gets weakened, okay, rupee gets weakened and vice versa। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं and vice versa, सॉरी, ओके। ठीक है, सो बेसिक सा ये एक नोटेशन रहता है। अब इसमें क्या होता है, जब DXY इंक्रीज होना चालू हो जाता है तो रुपी वीकन होने लगेगा। दैट मीन्स FIS का जो इनफ्लोज आएगा वो मतलब रुक जाएगा या फॉर अ टाइमिंग स्टॉप हो जाता है। वाई? बिकॉज देयर कॉस्ट गेट्स इंक्रीज्ड। अगर आप देखो कि रुपी वीकन मतलब अगर रुपी डॉलर के सामने वीक होने लग जाए तो आपका जो कन्वर्जन रेट है फ्रॉम डॉलर टू रुपी, ओके, दैट गेट्स इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली आपका जो FIS को कॉस्ट होता है ना, जो उन्होंने डेरिवेटिव्स या कैश में पोजिशंस बनाई होगी, वो कॉस्ट या बोल सकते हैं मार्जिन, दैट स्लाइटली गोज अप if rupee is weakening। So FIs do not prefer the rising dollar index and similarly a bullish market, because DXY is a global, you can say, global strength checker for every currency। Yeah, global, you can say, it's just a you can say a helper in terms of sorting out the investments inflows and outflows in global market। ठीक है, सो मोस्टली आप फॉरेक्स मार्केट में इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज देयर द पेयर्स डिपेंड्स अपॉन हाउ द डॉलर इज रिएक्टिंग। सो उस हिसाब से फॉरेक्स फ्लक्चुएट होता है एंड उसका रिपल इफेक्ट आपको इक्विटीज़ या बॉन्ड मार्केट में आते दिखता है। सो आपको अगर याद हो तो आज एक न्यूज़ फ्लैश हुआ था on around second half of today कि India has introduced 30 years bond contracts also। ठीक है, एंड सिमिलरली इंडिया का 5 year yield भी थोड़ा इंक्रीज होने लगा है। what does that mean simply? इसका मतलब सिंपल है कि जब भी आपको ऐसा कुछ स्ट्रेंथ आते दिख रहा है तो FIs अपना जो पैसा है या इनफ्लो है वो एक सेफ हेवन में पार्क कर देंगे।
या एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाके पार्क कर देंगे फॉर टाइम बी until they get a fair valuation to invest और मतलब उनको एक फेयर वैल्यूएशन चाहिए टू जस्ट पंप इन द मनी अगेन. ठीक है. सो आई होप यू गेट द रिलेशन. सिमिलरली इसके बाद आता है आपका यूएस ऑयल, बिकॉज इस ऑयल भी आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट टचिंग, ऑलमोस्ट गोइंग टू टच $100. बट आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ किसने दी है इसको. इधर क्वार्टरली H4 तो थे ही. द मूव स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, करीबन ये 80 के आसपास ही घूम रहा था, 78-80 डॉलर्स के लगभग घूम रहा था. एंड गॉट स्ट्रेंथ एंड अगेन रिसेंटली ज्वाइन किया मंथली H4 ने, और उसका एक स्ट्रेंथ आता है आपको दिख रहा होगा. सो आपको पता है कि ऑयल का तो इतना कुछ नहीं है. ऑयल इधर आके सबसाइड भी हो सकता है, साइडवेज रह सकता है समवेयर हियर. ओके, समवेयर हियर. इसके ऊपर जा रहा है देन इट्स अ कंसर्न. टुवर्ड्स 100 अगर ये पहुंच रहा है then definitely it can produce some ripple effects on the Indian markets also. अगर अब आपको ये चीज समझ आई है तो आपको अब एक सिंपल सा रिलेशन और बता सकते हैं. वापस एक बार निफ्टी पे चलते हैं और एक चीज दिखाता हूँ कि निफ्टी में बाइंग इसलिए भी नहीं हो रही बिकॉज या बोथ इंडाइसेस. आपको अगर ये DXY एंड ग्लोबल क्यूज अगर समझ आ गए हो तो आपको अभी एक रिलेशन अच्छे से समझ आ जाएगा कि निफ्टी के पास फ्रेश बायर्स नहीं है. दे आर एग्जॉस्टेड फॉर बायर्स. इफ यू आस्क हाउ, तो ये देखिए, अगर ऊपर की तरफ पुल बैक देना है तो एटलीस्ट दे नीड वन स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम बायर. तो अभी करंटली हायर टाइम फ्रेम बायर उनके पास कौन है? यू सॉ दैट वीकली L3 प्लेयर्स. उसके अलावा दे डू नॉट हैव एनी, यू कैन से, सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव बायर्स प्रेजेंट एट एनी गिवन लेवल. सब नीचे की तरफ प्रेजेंट है. QH3 भी नीचे है, ML3 भी नीचे ही है टुवर्ड्स ईयरली H3. सो इसके लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कल वो ML3 प्लेयर्स, WL3 प्लेयर्स उनको सपोर्ट करें एंड निफ्टी इसके ऊपर रहे ताकि इसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिल पाए जस्ट फॉर अ हेल्दी पुल बैक, या एक क्लोजिंग वीक के लिए बुल्स को स्ट्रेंथ मिल पाए जस्ट टू होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर वन मोर डे. अगर फॉल आना वाजिब है इसके बाद भी, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? सिमिलरली जैसे हमने नेक्स्ट डे के पिवट्स देखे थे, ओके, वैसे ही सिमिलर नोट पे आपको नेक्स्ट मंथ के पिवट्स भी कल देखने पड़ेंगे, सो दैट वी गेट अ फ्रेश सेट ऑफ सेलर्स और बायर्स इन प्लेस. अगर इसको फ्रेश सेट ऑफ बायर्स मिलेगा तो कहीं ये बेस बना सकता है नियर अराउंड 19,400-350 लेवल्स. कहीं मतलब वापस से कहीं इधर बेस बना सकता है समवेयर अराउंड या 19,400. अगर इसको फ्रेश सेट ऑफ मंथली बायर्स मिल रहा है आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्रॉम मंडे. अगर नहीं मिल रहे हैं, अगेन दोज बायर्स आर गेटिंग डिफेंडेड, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस बेस. जिसने बेस बनाया था उसको काफी तेजी से हम तोड़ सकते हैं. सो now I hope you can understand how all things get submerged, या कैसे सारी चीज़ें अपने आप में सबमर्ज होके आपको एक पूरा सिनेरियो दिखाती है. राइट. सो this is I hope for Nifty and similarly goes for बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के पास भी करंटली कोई फ्रेश सेट ऑफ बायर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग WL3, that is weekly responsive bias. ये देखिए बैंक निफ्टी का भी कुछ सिमिलर केस सिनेरियो. हैव अ लुक. सो बैंक निफ्टी का जो लास्ट सपोर्ट है ना, बैंक निफ्टी का तो लास्ट सपोर्ट ही कल के लिए बायर्स है. तो अगर कल WL3 होल्ड नहीं करता है बैंक निफ्टी, देन डेफिनेटली निफ्टी उसको नीचे लेके ही जाएगा. तो बैंक निफ्टी में भी एक आपको 400-500 पॉइंट्स का फॉल देखने मिल जाएगा कल के लिए. And this all things can take place in the second half. अगर फर्स्ट हाफ में हम साइडवेज टू गैप अप में खुलते हैं, स्लाइड गैप अप, तो सेकेंड हाफ में आपको इंटेंसिटी ऑफ फॉल ज़्यादा मिल जाएगा. अगर हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो आपको सारे लेवल्स अभी पता पड़ गए होंगे, सारा सिनेरियो पता पड़ गया होगा, कैसे वर्कआउट कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है. एवरीथिंग इज लाइक प्लेन
on chart now. Plain, sweet, and simple. So you can use this opportunity to just make your September just a day more. एक और दिन बाकी है सितंबर में, तो आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो to get your things sorted or to get your particular month sorted. Okay, तो I hope this was very much clear. आप कोई क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में तो ले लेते हैं. If you have any questions, just message me on the chat box. And I hope बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हमने. Just let me just check. Yes, ऑलमोस्ट कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं आप. देखिए सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ, सेंसेक्स में से उल्टा ऑल अग्रेसिव था आज. अगर आप देखें तो 4 दिन का ऑलमोस्ट हाई पर टच करके इसने नीचे फ्रेश वीक क्लोज दिया. सो मे बी कल अगर आप देखना चाहें तो इसको आप ये कर सकते हैं, मतलब डिनोटेशन में रख सकते हैं आप. अगर कल बैंक निफ्टी को, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर स्ट्रॉन्ग, देन ये पुल बैक के लिए टूवर्ड्स मंथली एच हो जा सकता है, टूवर्ड्स 65,895 फ्रॉम इट्स करंट क्लोज, मतलब 400 पॉइंट ऊपर. ठीक है, वही मतलब अराउंड 0.5-0.7% का रेंज रहेगा ऑन बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज. सिमिलरली कुछ इधर बेस है एंड कुछ इधर, तो अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम सिमिलर, सिंपल. ठीक है, सो आई होप दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर फॉर एवरीवन. सो यस, आई गेस दिस शुड बी लाइक डन देन, बिकॉज हमारे पास और बाकी स्टॉक्स हैं, तो स्टॉक्स तो आप कभी भी पूछ सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और थी कि आपको आईटी स्टॉक्स में भी एक बीटिंग आती हुई दिखी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं TCS, LITM, देन इन्फी, देन विप्रो. ओके, किधर गया विप्रो? ओके, विप्रो. ठीक. सो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में आपको एक बीटिंग डाउन आते दिखेगी, बिकॉज उसका भी सिमिलर एक ही सोर्स है और उसका भी एक ही गाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. व्हाट डू यू से, यूएस कंपनीज का जो अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट मोस्टली, उसकी वजह से आपको सिमिलर उसका इफेक्ट आता दिख रहा है इंडियन कंपनीज पे भी, बिकॉज दिस थिंग इज मोर, यू कैन से IT सेक्टर इज मोर डिपेंडेंट ऑन द डॉलर एस्पेक्ट्स. ठीक है, सो अगर डॉलर अगर इसमें स्ट्रांग हो रहा है तो इट इज़ गुड फॉर IT सेक्टर, बिकॉज IT इज मोस्टली इनटू एक्सपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा गोज फॉर बैंक्स. ठीक है, बैंक्स को जितना इम्पोर्ट, जितना रिजर्व मिलेगा अपने इन्वेंट्री में, सो इट गेट्स गुड फॉर द बैंक्स. सो आई होप दिस आर जर्नल रिलेशंस जिसको आप डिनोट कर सकते हैं या डिकोड कर सकते हो. ओके, सो यस, ठीक है. आई होप इंडाइसेस हो गए, स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट, कुछ अगर कल दिखा तो मैसेज कर देंगे. स्टॉक्स का भी बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, एंड राइट नाउ नथिंग रिमेन्स. सो लेट्स चेक द चार्ट बॉक्स नाउ. व्हाट, ये तो बोल दिया था, योर एक्सप्लेनेशन आर ब्यूटीफुल. ओके, थैंक यू. मिलना मिलना मिलनाप्स्टर. Okay. Good evening, Mukulji. Good evening. I think second scenario is more likely to happen. We talked about any scenario. आप देख सकते हैं. It depends upon how it opens. In Nifty, bearish GPZ tomorrow. Yes, we already saw that. So could you please share your verified PNL of recent months? यार तुम ट्विटर वाले हो क्या? चार्ट एडिक्टेड ट्रेडर. गेल चार्ट. Sir, how do you gain confidence on swing trade? Because I always fear that it might open down the next day. Then brother, I बोलो यार, let it be. Chart addicted trader.
गेल चार्ट अपकमिंग डे। अच्छा, आपको अपकमिंग डे के लिए चाहिए ना? दैट्स व्हाट आई थॉट। गेल चार्ट, तो देखिए गेल तो आपको बिफोर दिस इवन लोड्स यू कैन सी अ गुड कॉन्फ्लुएंस हियर। ये देखिए बेसिकली आपको ये जोन दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल एंड गैस, सी अगेन दिस कम्स अंडर ऑयल एंड गैस। सो अभी करंटली द oil, we talked about US oil. The US oil is on a good move. So if it gets stronger, then it is bad for gain because inversely proportional है. So अगर DXY तो आज fall हुआ है, and similarly अगर कल भी होता है, and along with this thing, what do you say, uh, US oil, ठीक है, उसमें भी sideways momentum रहता है, तो कल एक स्लाइटिश आपको एक पुल बैक देखने मिल सकता है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 122 या 123। ओके, इसके बाद आप एक चीज़ होते हुए देख सकते हो। अब आपको अगर ये बेसिक सा समझ आ गया तो इसको मैं फट से नीचे ले आता हूँ टुवर्ड्स 15 एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको आके देख सकते हैं। सॉरी, डेल कल के लिए हम इसको देख सकते हैं, नॉट डेली टाइम फ्रेम, माय बैड। आई गेस दिस वाज ऑन डेली, या दिस वाज ऑन डेली। सो सी किधर है आपको 123, इट्स समवेयर अराउंड जो हमने अभी ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखा। सो एज आई सेड, ये देखिए कितनी बार इसका रेजिस्टेंस है 123 पे। इफ यू गो एंड चेक 1 2 3 ऑलमोस्ट 4, ठीक है। तो इधर आपको सेलर्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए दिख जाएंगे। सो बेसिकली गेल कल प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा मूव आते दिख सकता है। शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है 123 के ऊपर, बट शॉर्ट कवरिंग एज इन कहीं दिख नहीं रहा है, ऊपर कहीं स्कोप दिख नहीं रहा है इसका। तो बेसिकली ये ट्राई करेगा कि नीचे की साइड फ्लश ऑफ कर दे। अगर आप देखें तो नीचे की साइड भी 121 एक बेस बन चुका है, ये देखिए। अब देखें 121 टू 123 ये साइडवेज है एक्चुअली, अगर आप देखें ध्यान से तो ये साइडवेज है। ओके, एंड इसका अपर एक्सट्रीम डिफाइंड है, लोअर डिफाइंड है। तो अगर कल मार्केट वीक रहता है या फिर आपका ऑयल एंड गैस साइडवेज टू नॉमिनल गेन्स में रहता है, देन a attempt can be made to again break this particular level on the downside because either larger player या larger liquidity trap होगी if the particular traders are not able to sustain here because इधर दोनों trap हो जाएंगे, आपके daily responsive bias and monthly initiative bias, and the opposite can happen if और ये चीज़ कुछ इस तरीके से आपको होते हुए दिखेगी जब H4 और when H4 gets defeated या इधर एक फेल ऑप्शन आता है आपको दिख रहा होगा, then how the move can be something like this, ठीक है, something like this can happen, this type of fall can come across, या अगर उसको पहले से ही नीचे होना होगा तो somewhere around it will open somewhere around here, कुछ इधर इधर ही ओपन होके फिर ये सी पे आके कुछ इस तरीके से साइड मूव होके it will then decide to break this level or break this level. So this was basically for Gale. अगेन जैसा कि बोला कि ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ओपन कैसे हो रहा है एंड हाउ द थिंग्स आर मूविंग अक्रॉस, ठीक है। सो यू कैन कीप अ चेक ऑन हाउ द लेवल्स आर प्लॉटेड एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग अक्रॉस विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इसका मेन तो आपको ऑयल एंड गैस पे एक बार ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज हाउ द ऑयल इज गिविंग अ मूव, यूएस ऑयल कल क्या इंट्राडे में मूव दे रहा है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ, उस पे भी डिपेंड कर सकता है हाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक मूव्स अक्रॉस, एंड इसके सेक्टर पे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर सेक्टर स्ट्रेंथ में है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे भी आप एक बार नज़र रखना है। और बेसिक्स अगर आप देखने जाएं तो बेसिक्स था इसमें हमने टेलीग्राम के चैनल पे भी देखा था कि निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे स्पॉट से कंपेयर करो तो इट वाज समवेयर अराउंड दिस थिंग, ये देखिए निफ्टी का स्पॉट वर्सेस
फ्यूचर्स, तो निफ्टी हैज़ जस्ट कवर्ड अप द डिस्काउंट पार्ट, एंड बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था वो भी समवेयर अराउंड इक्वलाइज हो चुका है, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी. अब नेक्स्ट मंथ, that means October series कल से शुरू होगा, but according to the pivot time frame we will still have like 1 day left for September series. तो कल मंथली लेवल रिस्पेक्ट होना, जैसा कि मैंने कहा, इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, समवेयर अराउंड 121 लेवल. ठीक है, 121 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन डेफिनेटली इट विल ट्राई टू स्टे अबव और इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर लेवल्स. अगर इसको ब्रेक कर देता है देन आपको नीचे की तरफ एक मूव आते हुए दिखेगा. some like I said कि L3 and H4 दोनों ट्रैप होते हुए आपको दिख सकते हैं, and this actually will give a broader move as compared to both the, you can say, in terms of checking both the levels. इधर ज़्यादा मूव इधर पॉसिबल है, and again इसको स्ट्रेंथ मिल सकता है if निफ्टी एंड बैंक निफ्टी remain on a lower side या फिर on a lower notation. ठीक है, so keep a check, and accordingly you can just have your views across with the same thing. ठीक है, any more questions, so you can leave them in the chat box. अगर कोई और stocks के बारे में है या फिर other you have something about indices में भी almost सब covered ही है, so indices तो almost we have discussed, and ठीक है, stocks का अगर कुछ है तो आप बता सकते हैं within 1-2 minutes if anything is there for your basic annotation. ओके, वेल अगर आप एक चीज़ और देखें तो इंडिया विक्स भी आज ऑलमोस्ट इट डिड गुड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी आके देखें, सो इट हैड अ गुड मूव आफ्टर too many days, after a series of weeks. So if you just go and check this thing out here, ये देखिए, तो आपको एक annotation इधर आकर दिख सकता है somewhere around this particular part. I have a check here. इसका रेंज देखिए, कंपेयर टू ऑलमोस्ट लास्ट रेंज एक्सपेंशन जब हुआ था इट वाज समवेयर अराउंड मार्च, और उसके बाद आपको एक रेंज मदर कैंडल का ही रेंज आपको ट्रेड होते दिख रहा है समवेयर अराउंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये देखिए, दिखा आपको कुछ एक रेंज बनता हुआ समवेयर अराउंड 13 to 8, 9 to 13. सो कहीं almost it is fluctuating near to this particular level, and today the range was very good. Along with the range expansion you saw market falling, breaking good supports, जो कि आपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम होते हुए देख लिया होगा. सो अगर कल रेंज एक्सपैंड होके ऊपर की तरफ बढ़ता है विक्स, कल भी विक्स अगर स्ट्रांग रहता है, then it would be a good indication for the sellers because they can continue their particular momentum. और जब विक्स हाई हो जाएगा तब डेफिनेटली इट विल जस्ट go on like giving good or subtle moves compared to both the indices at Nifty 50 and Bank Nifty. ठीक है, तो आप both in similar scenarios or in both the scenarios you can go on analyzing how the things are moving across. ठीक है, तो I guess you can just correlate this thing, Nifty, Bank Nifty and again India VIX. So ये सब कंबाइन करके कल आपको एक ब्रॉडर रेंज आपको दिख सकता है, एक ब्रॉडर मूव आपको आते हुए दिख सकता है पूरे एक मार्केट में. ओके, एंड दिस शुड बी इट आई गेस बिकॉज इट्स ऑलरेडी नाउ 1 hour, 1 घंटा हो चुका है. स्टिल इफ यू हैव सम स्टॉक्स टू डिस्कस देन आप 1 या 2 स्टॉक्स मुझे बता सकते हो. वी कैन क्विकली गो एंड चेक अक्रॉस बीट और keep it to FN only because cash वाला भी possible नहीं हो पाएगा. Like FNO में if you just go and check, then we have a good set of move coming across with MCX. ठीक है, MCX भी अगर आप देखेंगे तो it was
doing a good move because from October 3 it has a new index to get traded across. ठीक है, तो इसका एक न्यू आपको इंडेक्स दिख रहा होगा 3 अक्टूबर से which can be traded. So वही it's a news based stock basically. Okay, so we have Vikrant Verma. Okay, Vikrant ji, thanks for sharing the wisdom. Yeah, welcome. Welcome. Uh, okay, so I was saying about MCX. So I hope you can just have a look upon news going on in MCX. And similarly for the lowest, you have HL that was maybe a split or bonus, something like corporate action. ये देखिए हाँ split था almost. So it would just get adjusted tomorrow. So उसके लिए आपको कुछ देखने का ऐसा जरूरत नहीं है. And definitely paint stocks. ये देखिए paint stocks अच्छा है कि we just got a hold of this. Berger and Asian दोनों के दोनों आपको एक डाउन मूव या वीक होते हुए दिख रहे हैं. And you can check the reason why. Because or solely you can see this particular thing because of US oil or basically crude oil. Crude oil जब भी बढ़ता है it is not good for paint companies because उनके raw material ही crude होता है. Basic need in raw material is crude. So basically it gets weakened. उनके margins पे effect होने के ज़्यादा chances रहते हैं if the price of crude is on a higher side on a larger period of or portion of time. ठीक है, तो you can just keep a check on how the paint stocks are doing across. ठीक है, and similarly this goes down the same with Berger. So इस पे आपको एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर ऑयल if US oil is not able to sustain 97 98 of levels $97 98 levels क्योंकि आपको लिखा होगा तो एक ईयरली H3 लेवल है. अगर वो उसको सस्टेन नहीं करता है उधर से रिपेंट होता है नीचे की तरफ then you can see a particular pullback in paint stocks. ठीक है, और pullback के लिए you can see we are open for a pullback by QL3 player, quarterly responsive buyers because आपका क्वार्टर भी खत्म हो रहा है. करेक्ट. सो अगर आप देखेंगे इस चीज को जुलाई अगस्त सितंबर तो कल एक नया क्वार्टर भी शुरू होने वाला है. सो टुमारो इज एक्चुअली अ क्वार्टरली एक्सपायरी. इंडियन मार्केट्स में होता नहीं है क्वार्टरली एक्सपायरी बट अकॉर्डिंग टू बेसिक रिजल्ट सेक्शन और सेशन आपका क्वार्टरली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट in terms of quarter it is also important. So आप उस चीज को देख सकते हैं एक बार. You can keep a check on those. ठीक है. And similarly Berger में भी अगर आप देख लेंगे तो Berger में भी आपको similar kind of buyers. Yeah. Okay. So Berger also has a breakdown of monthly L4. So अगर आपको ये चीज में एक चीज आप अगर आपको इधर भी देखनी है तो आपको इधर एक ब्रेकडाउन आता है दिख जाएगा ऑन मंथली L4 एंड या ऑलमोस्ट एट अ सपोर्ट लेवल अगर आप इसको देखना चाहें. सो आपको इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल पे आते हुए दिख सकता है. सो समवॉट अगर एक पुल बैक आने का कोशिश अगर इसको देना है देन डेफिनेटली इट हैज टू जस्ट टर्न अक्रॉस और टर्न अप फ्रॉम हियर. ठीक है. सो इस तरीके से कुछ आपको दोनों पेन स्टॉक्स मूव करते देख सकते हैं अगर क्रूड रिपेंट या रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है तो. So it might just depend on how the indices are moving forward or how the global cues are moving forward. So he asked for please Meetuji asked for please discuss FMCG sector. ठीक है. Sudeep P, thanks for catchy analysis. Always welcome. Always welcome. Okay. And Girdhar says, sir, what about my swing trade question? Please reply. Okay. तो आपके स्विंग ट्रेड में स्विंग ट्रेड का जो सिनेरियो आपका था दैट इज हाउ डू यू गेन कॉन्फिडेंस इन स्विंग ट्रेड बिकॉज आई ऑलवेज फियर दैट इट माइट ओपन डाउन द नेक्स्ट डे. सी ये फियर तो ऑलमोस्ट पूरे मार्केट को ही है बट योर क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग बिकॉज अगर इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट स्विंग ट्रेड देन यू शुड नॉट गेट वरीड अबाउट द नेक्स्ट डे ओपनिंग बिकॉज इफ यू हैव एंटर्ड एट द राइट मोमेंट और राइट मोमेंटम ठीक है. तो आप you can only take your stop loss. The max
The max or the worst case scenario is your stop loss. And if that thing is on the righter note or on the righter part, then आपका target completion is the ultimate point which you can aim for. Okay, so keep a check on that particular thing, because अगर आप पहले swing के बारे में बात करें तो keep a check of how you are entering into that particular stock, or basically you can say stock options या stock में या फिर even indices. So pick up your, or you, if you can just go on sharing your charts or entries in the chat room itself, then we can just see that what was the scenario where you went wrong. So you can just use the chat room to send your charts in that case. Okay. So Meetu Dalaiji, your question was, please discuss FMCG sector. So FMCG sector, like I said, okay, see, if Nifty is on a safer haven, अगर Nifty आपको एक safer haven में आपको आते हुए denote होता है दिख रहा है, then basically आपको FMCG sector भी pick up होते हुए दिख सकता है in terms of how the shift is appearing, or in terms of how the shift is getting towards the market. ठीक है, तो FMCG भी अगर आप if you want to just check, then CNX FMCG, you can just go on checking the broader index first. CNX FMCG टाइप कर सकते हैं आप, and just wait for the load. So see, basically you might see the whole index, it's standing at a point where you can see monthly initiative players, that is sorry, yearly initiative players, and that is almost like a support zone right now. अगर आप देखेंगे तो first it was a resistance, then a support, then again a support, and then again it is testing out that particular level again. That is around 15,000. अगर लेवल के फॉर्म में अगर इसको हम देखना चाहें तो लेवल के फॉर्म में इट माइट बी समवेयर अराउंड 51,300. सो जैसा कि मैंने कहा कि इफ द मार्केट इज गेटिंग वीकर टुमारो, देन ये सेक्टर जो है आईटी एंड एफएमसीजी कैन टेक अ बाउंस, because IT just got a beating, I guess, just because of disappointment on the parent companies in the West. So उसका एक beating या उसका एक pseudo effect आपको आते दिखा होगा in India too. So उस level पे अगर हम देखें तो then we can just see some things happening across. Okay, so you can just have a look upon that. So someone is constantly knocking on your door, please check. No, actually there is some construction work going on in my house, so you can ignore that, sorry. Chart addicted trader, Tata consumer, and it says thank you, right? So for Tata, see, Tata consumer again comes into FMCG sector, and you can just go on and check across with this particular stock also, that is again FMCG. So FMCG में you can take a broader analysis of this thing, FMCG sector, and accordingly you can keep a check on the individual stock also. So Tata Consumer भी अगर आप देख रहे हैं, so it is standing on a support. आज एक close मिला है below yearly H4, and this can just be carried across, वरना आपको एक reversal candle भी आते दिख सकता है tomorrow as well, अगर FMCG sector picks it up. Okay, so basically you can see the denotation denotation on the upper side, right? So keep a check on basically both of your things on the upper hand, and as well as the broader indices as a whole. Correct? So I hope this should be clear on terms of how we are moving across with the indices, the individual stock or sectorals we discussed, and what can be the possible moves for tomorrow. So I hope this was it and you liked it. If you liked it, share it with your fellow traders, and we will meet in the next live session soon. On that note, I hope it was helpful.
and useful. So good night everyone. Have a nice day. Let's meet tomorrow at the markets.